He is founder member of the Cybercrime Cell in Jaipur, working activity towards digital safety and cyber awareness. And over a mug of plant to our guest as a gesture of warm welcome to the Mr. Prem Sudhakar Tari. She is advisor. Divyan Jain Seva Sanstha providing. She is founder of Divyanshi Jan Seva Sanstha dedicated towards road safety, women empowerment and cyber security awareness since 2012. Thank you so much, ma'am. Now, I would extend our warm greetings to our respected teacher, Mrs. Anchal Puri ma'am, is now presentation of renowned speaker and legal experts, known for her impactful session and public speaking. Now, I would like to invite ex-principal of government school, Shrubi ma'am. Name Meera Saxena. We can invite Akansha ma'am further for that to welcome Meera Saxena ma'am. It gives us always that pride because she is the alumna of this college. So being an alumna of the same college, I always take this opportunity to invite her. Welcome ma'am. Now I would like to thank you to all. Now it's time. Thank you. Namaskar to everyone. Today we all are gathered here for some enrichment. As I always say that we always talk about holistic development. So it is the duty of the college that in spite of the curriculum which is prescribed by the affiliating university, we should go for all other required things for good life. And we know that like other essential things. And every good thing has some hurdles, some causes, some problems. And we know either we faced or someone close to us have faced that there is some big shock or some sort of losses due to cyber crimes, due to some things which can be ignored but due to our negligence. वो तो फिर मतलब क्या हो, मुझे कोई वर्ड ही समझ में नहीं आ रहा है. अभी मैं हाथ खड़े नहीं करवाऊंगी, आप लोगों को खुद को पता है कितने लोग इसका शिकार हुए हो. तो ये स्मार्टनेस नहीं होती है. कॉलेज के अंदर आपके टीचर्स हैं, मेंटोर्स हैं, कोई भी 50 रुपए using internet should be aware of the cyber crimes which are going on, and it is a collective responsibility to ensure that we ourselves, our families and people around us ensure our economic and personal well-being, because privacy is also our fundamental right in a way. So I think the details will be told by the experts, but generally I think these cyber criminals, they feed on your psychological weaknesses, like your inquisitiveness. You want to find out something, so you have to keep a control on your impulsiveness. They feed on your greed, that they'll give you something, and they also like you should be aware and not be impulsive, and wait for a time and discuss with people around you. You are in trouble and you are also mentally harassed. So I think if you prevent it at the initial stage, we can all be happy and lead a good life and use internet positively. Thank you. ये एक दिन का साइबर जागरूकता अभियान का आयोजन रखा. इसमें हमें आमंत्रित किया गया. इसके लिए मैं प्रिंसिपल मैम एंड अन्य सभी का बहुत आभारी हूँ. मैं साइबर यूनिट वेस्ट में तैनात हूँ. ज़्यादा कुछ नहीं बोल के ये आपको इसके बारे में ज़्यादा बताएंगे, क्यों काफ़ी टाइम से ये इसमें काम कर रहे हैं. इसी के साथ
मैं इतना ही कह के धन्यवाद। जय हिंद। ये तो तुम्हें पता है ना कि फोटोज में आते हैं, तो मुझे पता है, लेकिन दुनिया को कैसे एक्सप्लेन करोगे तुम? ये फोटोज मेरे डिलीट कर दो। डिलीट तो मैं कर दूंगा, लेकिन एक बार सोचो, अगर ये फोटोज पूरी दुनिया के सामने पहुंच गई तो तुम्हारी फ्रेंड्स, अगर उन्हें पता चल गया इसके बारे में तो फिर क्या होगा? मैं अकाउंट डिटेल्स भेज दूँगा, 2 लाख रुपये मुझे ट्रांसफर कर दो, वरना सोशल मीडिया पे बहुत वायरल करने के लिए। हेलो हेलो क्या करूँ? एक तो कहते भेज रुपया और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मेरे पास। अगर इसको पैसे में भेजे तो मेरी फोटो क्लिक कर देगा, खाना करना भी होगी। हाँ भेज देगी पैसे। Can be happen to any of us. So there's a session has been ongoing for that only cybercrime and cyber security. So I am here to explain you about the cyber crimes and security, or what are the measures you can take to protect yourself. The criminal activities that targets computer or uses computers to malware or like viruses in your computer. There are list of cyber crimes like SASM, yani child sexual abuse material, where they use the child's images, obscene content and abuse, sexual absurd, exploit them by electronic form. Cyberbullying. Cyberbullying is a use of electronic or communication device such as computers, mobile phones or laptops. There is a cyber stalking where a person follow a person to attempt and contact a person, personal interaction repeatedly despite the disinterest by such person or monitors internet. Through ना क्या जानते हैं? नाम सुना कभी साइबर क्राइम का? किसी के साथ हुआ कुछ ऐसा? किसी के साथ क्या हुआ? अच्छा, सेम फोटोज वीडियोस, कुछ साइबर फ्रॉड से रिलेटेड कुछ ऐसा? बेटा बोलो, तुम सबको हाँ। सुनाई देगा, तुम बोलो। सेम थिंग जो इधर हुई है वो मेरे साथ हो चुकी है लास्ट टाइम 10th 11th की बात है। मैं स्कूल में थी, मेरे पास एक सॉरी सॉरी सेम चीज़ हुई है मेरे साथ 11th क्लास में। मेरे पास एक लड़का आया, वो मेरे को लाइक करता था। मैं नहीं जानती थी कौन है क्या है, बट वो मेरे को लाइक करता था। डिफरेंट स्ट्रीम, वो साइंस से था, मैं कॉमर्स से थी। मैं स्कूल इतना ज़्यादा नहीं आती क्योंकि मैं फिजिकली फिट नहीं रहती। आई एम अ हार्ट पेशेंट, बचपन से मेरे साथ अभी भी है, लेकिन मैं ठीक हूँ। मैं आती हूँ, कॉलेज होता है मुझसे, मेरी कैपेसिटी रहती है, मैं आती हूँ। मैं स्कूल भी कम जाती थी, मतलब घर मेरा ये है, मेरी 2 गली छोड़ के मेरा स्कूल है, एक ही गली में। वो लड़का मेरे पास आया, वो मुझे बोला कि मैं तुमको लाइक करता हूँ। एंड आई एम बी लाइक, मैं तो स्कूल भी नहीं आती, मैंने देखा भी नहीं है कि क्या है। मैं अलग स्ट्रीम से हूँ तो अलग स्ट्रीम से है, ठीक है। ये चला मेरे साथ 6 महीने चला, 7 महीने चला। इमोशनली टॉर्चर कर रहा है, फिजिकली टॉर्चर कर रहा है। मतलब स्कूल में आकर
बैक हिट करके जा रहा है, अलग अलग चीज़ें कर रहा है। एक दिन कॉल आया मेरे पास उसका ही कि मैं मेरी फ्रेंड के घर पे जाती थी, जो मतलब मेरी मम्मी को अलाउड नहीं करती थी, मेरे को जाना पड़ता था, फिर भी जाती थी मैं उसके पास क्योंकि उसको मेरी ज़रूरत रहती थी। मैं उसको पढ़ाने जाती थी बेसिकली। मैं उसके घर गई, वो लड़का उसी के साथ था, मेरे को नहीं पता था वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसके पास गई, उसने मुझे फ़ोटोज़ दिखाई। वो लड़का उसी टाइम आया, उसने बोला या तो तू मेरे साथ रिलेशनशिप में आ, या तो मुझे 50,000 रुपये दे, नहीं तो तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आ, नहीं तो फिर ये फ़ोटो लीक्स हो जाएगी। मैं उस टाइम कुछ नहीं कर पाई। मैंने उसका फ़ोन लिया, डायरेक्ट जो दिमाग में आया रोड पर फेंक दिया, फ़ोटो वोटो डिलीट करके बस फेंक दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया एकदम। और मैं उठकर पता नहीं किस कंडीशन में बस मैं घर आ गई। ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। नेक्स्ट डे पूरी रात समझ नहीं आया क्या करूँ, घर पर किसी को नहीं बताया। सुबह फ़ोन किया, भैया को फ़ोन किया, नॉट बाय ब्लड, मेरा कोई रियल ब्रदर भी नहीं है। फ़ोन किया, उसने सब कुछ हैंडल किया कि यार कैसे क्या, जो सेम ये बता रहे साइबर सिक्योरिटी, सेम इस चीज़ में अप्लाई किया। बहुत सारी चीज़ें हैंडल हुई, कुछ नहीं भी हुई, उसको सॉर्ट किया, लेकिन आज तक घर पर तो किसी को नहीं पता। बहुत बढ़िया आपने जो उसके फ़ोन को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि फ़ोन डिस्ट्रॉय होने के बाद में वो फोटोज कभी भी रिकवर की नहीं जा सकती। अगर डिलीट हो गई, फ़ोन में अगर डिलीट हो जाती है तो वो डेटा रिकवर हो जाता है, लेकिन अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है फ़ोन तो डेटा रिकवर होना बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या नामुमकिन है। और आपने कैसे कहा कि आपके ब्रदर नहीं है, पुलिस वाले आपके, पुलिस हमेशा आपके साथ खड़ी रहती है, ये भूलना नहीं चाहिए आपको। अगर आपके साथ ऐसी कोई कंडीशन हो जाए, ऐसी कोई घटना हो जाए, तो आप हेल्पलाइन नंबर बताओ, कौन से हेल्पलाइन नंबर है आप में, अगर किसी को पता हो तो 1930। स्टूडेंट्स किसी को नहीं पता। अगर किसी के साथ ऐसी कोई साइबर घटना हो रही है तो 1930, और अन्य अगर कोई परेशानी है तो 1090। अगर 1930 पे कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो आप उस कंडीशन पे एनसीआरपी पोर्टल है हमारा एक, एनसीआरपी पोर्टल पर जाकर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हो। उसके ऊपर कौन सा पोर्टल है? एनसीआरपी पोर्टल। आपका फोन खो गया, फोन खो जाता है जनरली, चलते गाड़ी में छूट गया या फिर कहीं मेट्रो में छूट गया, तो उसके लिए आप क्या करते हो? जाने की जरूरत ही नहीं है। आप थाने में कब जाओगे? जब आपके पास मैसेज आ जाए कि भाई हाँ इस फोन में सिम एक्टिव हो चुकी, तब आप थाने में जाइए और कहिए श्रीमान जी ये मेरा मोबाइल 4 महीने पहले खोया था और ये इसमें सिम एक्टिव हुई है, आप इसको मंगवाइए। पुलिस मदद करती है आपकी। कौन सा पोर्टल है? CEIR पोर्टल है। एक आपके साथ में कोई बार बार आपके साथ आपके फोन के ऊपर अननोन कॉल्स आ रहे हैं, वीडियो कॉल्स आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर मतलब इन बदतमीजी से पेश आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या करते हो? ब्लॉक कर देते हो। तो हो सकता अब उसकी परमानेंट सिम ही बंद करवा दो तो कैसा क्या रहे, वो और भी अच्छा रहे। तो एक हमारा एक MHA का ही पोर्टल है, संचार साथी पोर्टल। कौन सा पोर्टल है? संचार साथी पोर्टल। उसके ऊपर आप पहले तो 1930 पे कंप्लेन कराओगे आप इस बात की कि भाई ऐसे लोग ऐसे ये जो नंबर वाला है वो मेरे को काफी परेशान कर रहा है। वहां से आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। संचार साथी पोर्टल पे गए, आपने शिकायत संख्या डाली, शिकायत संख्या डालते ही ऑप्शन खुलेंगे आगे। अगर नहीं समझ में आई, संचार साथी पोर्टल में यूट्यूब के कुछ वीडियोज है, वो देखकर आप ब्लॉक करवा सकते हैं। कोई भी नंबर हो जो बार बार परेशान कर रहा है, उसके स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट अटैच कीजिए, सिम ब्लॉक हो जाएगी 24 आवर्स के अंदर। ऐसे हर किसी की नहीं करवानी, होनी चाहिए। 2 स्टेप वेरिफिकेशन एक्टिव होनी चाहिए, मेल आईडी पे भी होनी चाहिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप सभी पे एक्टिव रहना चाहिए। वो आप 50% से APK लिखा हुआ आता है फाइल के ऊपर, .apk, वो फाइल कभी भी डाउनलोड नहीं करनी।
दूसरा होता है अभी दिवाली आने वाली 10 दिन बाद में, अभी फ्लिपकार्ट के ऑफर चलेंगे, अमेजन पे चलेंगे हैं, साइबर सेल जयपुर से संदेश आया है, शुभकामना संदेश आया है, ऐसे कई संदेश आएंगे। आपको कभी भी उन लिंक्स के ऊपर क्लिक नहीं करना है, क्लिक करना ही नहीं है। क्लिक कर दिए तो फिर वो तो भरपाई फिर दिवाली बाद में होगी। फिर कि अगर कोई आपको अननोन पर्सन बुला रहा है, भाई देखो एसीपी साहब हमारे मतलब एज के हो गए, प्रिंसिपल मैम एज की हो गई, वो यहाँ आए हैं ना, इनको तनख्वाह मिल रही है ना, मेरे को तनख्वाह मिल रही है ना, इसलिए आज हम यहाँ आए हैं। घर बैठे पैसे कमा के कोई नहीं देता, न तो ट्रेडिंग में कोई कमा के देता और न कोई एक का डबल करता। वो अक्षय कुमार की फिल्म देखिए ना, हेरा फेरी, देखिए फिर हेरा फेरी, वो वाला सीन हो जाएगा। सर ये चीज़ आप और थोड़ा फोकस करिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट अभी ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस का काफ़ी झांसा दिया जा रहा है इन्हें कि हमारे पार्टनर लिंक भेजते हैं, हाँ, और इंस्टाग्राम पे पूरा प्रोफाइल है पर्सन का, वो खुद को इंडोनेशिया बैंकॉक घूमता हुआ दिखा रहा है, भाई वो इतना बिजनेस कर पा रहा है कि वो इतना घूम रहा है, और वो दूसरी गर्ल्स को जैसे चेन बनाते हैं ना, चेन बना रहा है, भाई एक गर्ल को पकड़ा है फिर और उसके थ्रू वो चेन क्रिएट कर रहा है कि वो और पार्टनर लेके आए और भाई बिजनेस करेंगे। कोई बिजनेस का पता नहीं है क्या बिजनेस है, कुछ है, और काफ़ी हमने कोशिश की उसको मतलब फाइंड आउट करने की, तो वो मतलब समझ नहीं आ रहा है कि वो ऑथेंटिक है और नहीं। मतलब वैसे भी ऑनलाइन बिजनेस सर क्या ही बिजनेस नहीं, आजकल जैसे बिजनेस एसीपी साहब ने तो पूरी उम्र खपा दी पुलिस में। इसका बता क्या तोड़ क्या है? इसका तोड़ तो सर यही है, इसका काम तो हो ही रहे हैं सर, ऑनलाइन। जैसे अगर वो हमें कोई लिंक भेजते हैं, कहते हैं गूगल मीट अटेंड करो और हम आपको पूरा बिजनेस समझाएंगे, तो सर हम जब वो गूगल मीट अटेंड करें तो क्या क्या रिस्क है, मतलब कि वो गूगल मीट अटेंड अगर नहीं अटेंड क्यों करनी है? नहीं, सपोज अगर हम उसको पता करने के लिए कि ये पर्सन है कौन या कुछ इस तरह का। हाँ ले लो। हेलो, एक्चुअली गूगल मीट अभी सबसे ज़्यादा हो गया है, हर चीज़ में गूगल मीट एक इजी वे है कि ज़्यादा गैदरिंग करने का, ज़्यादा लोगों को जोड़ने का। पर सबसे पहले आपको फ्री स्पीच दी जाएगी, सिर्फ फ्री स्पीच। देन सेकेंड स्टेप रहेगा आपसे पेमेंट, एक टोकन मनी, जिसमें एडमिशन करने के लिए बहुत मिनिमम होता है या 500 या 1000। जैसे ही आप उसके अंदर एंट्री करते हैं, फिर थर्ड स्टेप आता है कि आपको थर्ड स्टेप में बढ़ने के लिए आपसे रिक्वायरमेंट रहती है, डिपेंड ऑन। सपोज एक फैशन शो हुआ था अभी, जस्ट अभी फैशन शो हुआ था, क्योंकि मैं फैशन डिजाइनिंग की मतलब मेकअप की क्लासेस भी लेती हूँ, तो सभी बच्चियों के पास लिंक आया कि हम लोग एक फैशन शो करा रहे हैं। जितनी भी लड़कियां ब्यूटिशियंस थी सबको ऐड कर लिया फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कह के कि हम आपको एक बड़ा ग्रुप दे रहे हैं बिजनेस वर्ल्ड का, उसमें उनको ऐड कर लिया। देन सेकंड स्टेप ये था कि आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराओगे, देन आपको 500 उसमें पे करने पड़ेंगे। बच्चियों ने खुशी खुशी रजिस्ट्रेशन करा लिया, क्योंकि उनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा था, जिसमें तकरीबन 5000 लड़कियों ने रजिस्ट्रेशन कराया। फिर थर्ड स्टेप ये था कि 10,000 आपको पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको मॉडल मिलेगी, देन आपको ड्रेसअप मिलेगा। उसमें से कुल 10 लड़कियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। उसमें अब आप सोचो कि थाउजेंड्स में एंट्री होती है और हंड्रेड्स में पार्टिसिपेशन किए जाते हैं, तो उनका बेनिफिशियल और अमाउंट कितना रहा। तो ये है कि हम आगे वाले स्टेप में नहीं जा रहे, तो हमारा पीछे वाला पैसा तो हमारा गया ना, बट ये एक लीगल वे में एक तरीके से करें कि आप लोगों ने ही आगे नहीं बढ़ा। तो हर स्टेप में यही रहेगा कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो फ्री में सिर्फ आपको स्पीच मिलेगी और उसमें लालच मिलेगी। और सपोज आपको ऑनलाइन घर बैठे बिजनेस कोई मिल रहा है, तो आगे कोई फ्रॉडी बैठा होगा, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। कुछ नहीं मिलता है, मैम भी यहाँ के पढ़ा रही हैं तभी सैलरी मिल रही है, सर जॉब कर रहे हैं तभी सैलरी मिल रही है, हम भी यहाँ अगर एफर्ट कर रहे हैं तो मे भी हमारा भी कॉन्सेप्ट रहेगा कि हम डिपार्टमेंट के साथ जुड़ के काम करें तभी हमें पैसा मिलेगा, नहीं तो हमें भी पैसा नहीं मिलेगा। फ्री में कुछ नहीं मिलता। तो किसी भी लिंक में या फ्री बिजनेस अकाउंट में हमें ऐड होने से पहले ये सोचें कि जो मई में
अभी परसों पल्ली रोज का एक अखबार उठा के देखना, राजस्थान पत्रिका, उसमें ट्रेजर नेफ्ट एक दुबई की एक कंपनी है एक्सपीओ और एक कोई अजमेर से एक आदमी को उठाया था जिसमें स्कॉर्पियो देता था वो 6-6 लाख रुपए में। पढ़ी थी वो न्यूज? कोई घर पे बैठे कमा के नहीं देके जाता। इस बात का अपने दिमाग में उतार लो। आपके मदर फादर बाहर जाते हैं, फादर साहब काम करने के लिए जाते हैं, वो इसलिए जाते हैं क्योंकि घर बैठे कोई नहीं कमा के देके जा रहा। इतनी बात आ गई समझ में? एक केस हुआ रिसेंटली भी, लेकिन उसमें मैटर थोड़ा सा ये है कि उसने ऑनलाइन वीसी के दौरान उस लड़की के वीडियो बना लिए थे, फोटोज ले लिए थे, इसलिए वो मामला 23 लाख तक चला गया। अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती तो कुछ नहीं होता ना। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं समझ गए ना? समझ गए ना? एक होता आपने फर्जी लोन का ऐप का नाम सुना? लोन एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करी। आपने जब लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करी उस दौरान आपने ये नहीं देखा कि मैं क्या स्किप कर रही हूँ, आपने ये नहीं देखा कि मैं क्या एक्सेस दे रही हूँ, आपने ये नहीं देखा कि अब मुझे क्या करना है इसमें। आपने स्किप करके आपने ऐप तो डाउनलोड कर लिया, लेकिन आपने उस दौरान आपकी मीडिया गैलरी, आपकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री ये उसके साथ आपने शेयर कर दी। आपको 5,000 रुपये का लोन देते हैं, 10,000 रुपये का लोन देते हैं, बदले में आपसे 15 से 20,000 रुपये मांगते हैं। 15 से 20,000 रुपये। 200 केसेज आए हैं मेरे पास 7 साल में, 200 केस। लड़कियों का बता रहा हूं मैं, बोझ तो अलग है। उसमें आपको डराया जाता है, आपको ये कहा जाता है कि मैंने आपको 10,000 रुपए का लोन किया है, आप मुझे 20,000 दीजिए। आपने 20,000 दे भी दिए, कहीं से लालू कर आपने दे भी दिए, तो कहते मुझे 50 चाहिए। आपने मना कर दिया, एक बार भी मना कर दिया, तो उसकी जो मीडिया गैलरी होती है, जो आपने एक्सेस लोन वो डाउनलोड करते टाइम पे, ऐप डाउनलोड करते टाइम पे आपने जो एक्सेस दिए थे, वहां से उस मीडिया गैलरी में से आपके फोटोज उठाता है, क्रॉप करता है। एआई के माध्यम, आजकल तो एआई के माध्यम से लगता है कि भाई यही है, क्रॉप करके फोटो आपके परिवार वालों के पास भेजने की धमकी देकर आपसे पैसे लेने की कोशिश करते हैं। वो लास्ट ईयर एक व्यक्ति ने 26 लाख रुपए तक दिए थे फर्जी लोन ऐप के चक्कर में। 26 लाख रुपए खिरनी फाटक पे उसने आत्महत्या करी थी। ये स्थितियां हो जाती है, इसलिए आपको इन चीजों की तरफ कभी जाना ही नहीं है। जरूरत पड़े पैसों की, मदर फादर से ले लो, पंचायती खुद मत करो। खुद पंचायती करोगे क्योंकि अपने में इतना ही दिमाग है, फिर सही है कि नहीं? गलत थोड़ी है कि खुद पंचायती करने में रहते। मैं भी जब मैं था 20-21 साल का तो मैं खुद ही पंचायती किया करता था, इसलिए फिर वो पंचायती सक्सेस होती भी नहीं थी मेरी, और वो मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम्हारी तो होगी भी नहीं। तो अपने को इस तरफ जाना नहीं है। एक समस्या सबके साथ है, कॉमन समस्या है। आपके पास जैसे गर्ल्स की ज्यादातर फेक इंस्टाग्राम आईडी बना देते हैं, फेक वो क्या बोलते हैं उसको, फेसबुक आईडी बना लेते हैं। बनाते नहीं बनाते? बनाते हैं। परेशान हो आप सब लोग। इसका इलाज ढूंढा फिर कभी? नहीं ढूंढा है? नहीं, ब्लॉक तो जैसे आपको किसी ने मैसेज किया, कंटेंट भेजा, आप तो उसी को तो ब्लॉक कर पाए। अगर खुद की फेक आईडी बन गई, उसका क्या इलाज किया? रिपोर्ट करवा देते हो? हाँ, वो भी ठीक है। वैसे तो ऑप्शन आता है कि आप इसे रिपोर्ट करना चाहते हो या ब्लॉक करना चाहते हो, ऑप्शन ही खुल जाता है। अगर आपने उस पर रिपोर्ट क्लिक कर दिया तो 24 आवर्स में या फिर कुछ घंटों में वो अकाउंट ब्लॉक हो जाता है कंप्लीटली इंस्टाग्राम से। सही है, लेकिन उसके लिए कम से कम 20 से 25 से 30 रिपोर्ट चाहिए होती है। चाहिए होती है ना? एक से नहीं होती, कम से कम 30 से 35 लोगों को वो शेयर करो, फिर वो उनसे रिपोर्ट कराओ। उस कंडीशन में स्क्रीन पर आ रहा है,
कि 3 दिन के लिए ये फ्री है। तो मैंने उस पे मेरे हस्बैंड को कहा इसे मिस कॉल दो, उन्होंने कहा ठीक है 3 दिन के लिए फ्री है। वो फ्री के बाद 60 रुपये अकाउंट में से कट गए। तो हमने तुरंत कॉल सेंटर पे फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर किसी एक नए बंदे का फ़ोन आया कि ये स्क्रीन है ना, इसके 3 डॉट पर आप क्लिक कीजिए, आपके 60 रुपये रिफंड हो जाएंगे। अब वो 3-4 बार उसने रिपीट किया तो मेरे हस्बैंड को डाउट हुआ। उन्होंने बोला कि आप वेट करो, अभी मैं करता हूँ। और फिर हमने मोबाइल ऑफ कर दिया। उस दिन हम बच गए। टाटा स्काई से ये था। तो कैसे पता चला कि कोई इंस्टीट्यूशन जो एक्चुअली जेन्युइन है या वो स्कैम के बेसिस पे है? मैं बताती हूँ। उन्होंने पूछा आजकल ना बहुत स्कैम चल रहे हैं कि ये स्किल कर लो, हमारे इंस्टीट्यूशन से कर लो तो हम आपको ये यहाँ पे बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपका सीवी बहुत अच्छा बन जाएगा। तो उससे हम कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे बचें ऑनलाइन को? कैसे पता चले कि ये स्कैम है इंटर्नशिप उसके बाद Amazon और जैसे बड़ी कंपनी हेलो, वो तो कॉलेज वाले बताएंगे ना। बहुत सारे कॉलेजेस बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होती है जो कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन में नहीं होती है, बट स्टिल ट्रेनिंग बच्चे में होती है। तो इन दैट केस कैसे पता चलेगा? ऐसा तो केस मेरे पास कभी आया ही नहीं। लेकिन इतना मैं मानता हूँ कि पहले वेरीफाई करो, सब चीजों को वेरीफाई करो। उनके ऑथराइज लोकेशन पे जाके सर्च कर सकते हो कि वेदर उनका ऑफिस है भी या नहीं है, वहाँ पे एक्चुअल वर्क हाँ, ये है या नहीं है। फॉर एग्जांपल उनका खुद का इंस्टा पूरा नहीं, प्रोफाइल जानने पे, प्रोफाइल जानने पे अब सोशल मीडिया के प्रोफाइल पे कभी मत जाना। रिव्यूज परचेज कर सकते हैं, बट किसी का ऑथराइज ऑफिस अगर नहीं है तो फिर आप हर फर्जी है, काफी फर्जी है। लिंक्डइन पे भी काफी फर्जी। मैं बता रहा हूँ ना, ओलेक्स पे अपन सामान बेचने के लिए, खरीदने के लिए जाते हैं, ओलेक्स पे काफी फ्रॉड हो रहे हैं। तो लिंक्डइन तो, और मैंने ये भी थोड़ी देर पहले एक बात बताई, जीवनसाथी.com पे फर्जी प्रोफाइल है। तो लिंक्डइन कौन सा आपको सही डेटा अवेलेबल करवा रहा है? आपको वेरीफाई खुद को करना पड़ेगा इन चीजों को। क्या सही पैसे मांग रहे हैं ना, तो पैसे तो देने ही नहीं है, कंजूस हो जाओ उस मामले में। तो ये है सर, एक्चुअली ये बच्चे जो फिजिकल सामने मांगते हैं तो देते नहीं है, और ऑनलाइन कोई मांगता है ना तो तुरंत देते हैं। तुरंत पैसे आते कहाँ से मुझे यही नहीं पता। 100 रुपए देने, 100 रुपए ही कहें, चलो दे देते हैं। 100 रुपए सोचो, वो 1 लाख लोगों से 100 रुपए। सही बात है। फिजिकल कॉर्पोरेशन मांगेंगे तो कोई नहीं देगा, बट वो ये आवाज नहीं। आगे आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल जैसे उनका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्ट्रेशन हो रखा है, बट ऐसा कोई जीएसटी नंबर नहीं है, कोई जीएसटी सर्टिफिकेट नहीं है, वो स्कैम है। आप विजिट कर लो ना उनका, अगर ऑथराइज्ड ऑफिस होगा, कोई पुराने एम्प्लॉइज होंगे या वर्किंग एम्प्लॉइज होंगे, आप उनसे पूछ सकते हो। हाउ कैन यू बिलीव कि लिंक्डइन पे प्रोफाइल बन गई और कंपनी ऑथराइज्ड? मैम वो तो क्या करते हैं, वो कहते हैं मेरी अलग बॉस है, फिर वो दूसरे कहते हैं नहीं मैं बॉस नहीं हूँ। एक्चुअली इन केसों में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि इंस्टा पे, लिंक्डइन पे आजकल फेक व्यूअर्स बहुत ज्यादा है, फेक फॉलोवर्स एंड फेक व्यूअर्स। तो उन्हीं के तो वो लोग जुड़े हुए होते हैं। एग्जैक्टली, उनसे वो लोग जुड़े होते हैं। पर आजकल हम क्या करते हैं, हमारे पड़ोसी, सपोज हमारे पड़ोस में कोई अच्छा काम कर रहा है, हम उसके पास नहीं जाते, हम लिंक्डइन पे या इंस्टाग्राम पे सर्च करते हैं किसके ज्यादा फॉलोवर्स हैं, जी हम उन्हीं से काम करवाएंगे। एक सबसे बड़ी बात और डॉक्टर का भी रिव्यू देखते हैं आजकल, जबकि वो डॉक्टर खुद रिव्यू करवाते हैं। एग्जैक्टली, मैं भी मेरी सेल की पढ़ाई कर रहा हूँ, यहाँ पे नहीं कर रहा क्या? पढ़ाई नहीं कर रहा मैं मेरी पुलिस की, सब पढ़ाई करते हैं। इसीलिए आप बिलीव उस पे करिए जो आपका पड़ोसी है और वो सालों से आपके सामने, आपकी आंखों के सामने काम कर रहा है। आप अपना काम उसी से करवाएं, या टीचर, इंस्टीट्यूशंस आपके आसपास जो कंटिन्यू सालों से चल रहे हैं, आप उन पे बिलीव करें। ऑनलाइन इंस्टीट्यूशंस जो चल रहे हैं वो आजकल फेक प्रोफाइल से बनते हैं, क्योंकि ज्यादा व्यूवर्स कैसे लिए जाते हैं ये सबको पता है कि पैसों से व्यूवर्स बनते हैं, फॉलोवर्स बनते हैं। जिन्होंने पुरानी बहुत, ठीक है, आज ऑनलाइन सिस्टम बहुत अपडेट होता जा रहा है और इन चीजों पे कंट्रोल पाया जा रहा है, पर जिन लोगों ने ये फेक प्रोफाइल प्रिपेयर कर लिए उनका क्या? उनमें तो लोग फंस रहे हैं ना।
तो उनमें फंसने से बचे, आसपास के लोगों को देखिए कि उसी फील्ड में, जिस फील्ड में आप किसी भी पर्सन को सर्च कर रहे हैं कि कौन आपकी आंखों के सामने काम कर रहा है, और सालों से काम करता हुआ पर्सन आपके सामने रहेगा तो वो अपनी इज्जत और रेस्पेक्ट के लिए ही काम करेगा। और कोई क्वेश्चन? Sons of Dilanshi Jansiva Chansa, come forward and present the vote of thanks on behalf of all of us. Thank you very much. And thank you very much, sir. Principal ma'am, thank you very much, Shobita ma'am, Preeti ma'am, and all of you. सभी स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा थैंक यू कि आप लोगों ने इंटरेस्ट लेके सारी चीज़ों को समझा, अच्छे से समझा, और आप लोगों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी वेबसाइट सर ने बताई हैं आप लोगों ने नोट डाउन की होगी, जितने भी नंबर्स आपको बताए नोट डाउन किए होंगे। कभी भी आप पुलिस को अपने से दूर ना करें, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप सबसे पहले पुलिस से ही कांटेक्ट करें, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ वे कि आपको वो सिक्योर करेगी, किसी भी तरीके से वही आपको सिक्योर करेगी। आप इधर उधर किसी से भी, सपोज आपके साथ कोई क्राइम हो रहा है और आप, जैसे उसने बोला कि मैंने किसी भाई को बोला, ठीक है, वो तो फेक भाई था कि चलो उसने उसको हेल्प किया, और अगर उस भाई के मन में भी कुछ ऐसा है पर वो पहले फायदा उठाएगा फिर उसकी हेल्प करेगा, तो सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स के साथ इतना अच्छा व्यवहार बनाएं कि अगर आप बहुत बड़ी गलती भी कर रहे हो तो वो आपके लिए सपोर्ट के लिए रहे। अगर वो आपको चांटा लगा रहे हैं तो वो आपके फेवर के लिए लगेगा, आपके साथ मोबाइल आपके लिए कुछ दिनों के लिए रख ले रहे हैं तो वो आपके फेवर के लिए रखेंगे और आपकी भलाई के लिए ही रखेंगे। और पुलिस अगर आपको थोड़ी बहुत पनिशमेंट दे रही है या फाइन चार्ज कर रही है तो वो भी आपकी सेफ्टी के लिए ही होता है, पर हम लोग क्या करते हैं, हम डरते हैं। तो ये हमें डरना नहीं है। जितनी भी अगर हमारे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले हमें पुलिस में जाना है और अपनी चीज़ों को दर्ज कराना है। सारी सेफ्टी और सिक्योरिटी, जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड बढ़ता जा रहा है पुलिस भी अपडेट होती जा रही है। और तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच एंड बहुत सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारी इसी चीज़ में बहुत अच्छा, हम सोचते हैं कि पुलिस के साथ मिलकर हम लोग भी अच्छा काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इधर आ जाए।